شکتی ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، اس خوبصورت شام کے لیے جو اس نے ہم سب کی زندگی میں بخشی ہے، کہ ہم اپنے خداوند کی ساتویں فصل کی جو شام ہے اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے، جس طرح اس وقت وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ خدا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت بھیڑ تھی، بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کتنوں کو کھانا کھلایا تھا اس وقت؟ ذرا اسی بولو، کتنا کو؟ 5000 صرف مرد۔ لیکن یہ جو آخری فصح ہے، یہ جو خداوند یسوع مسیح کا کھانے کا ٹیبل ہے، اس میں اس کے ساتھ وہی لوگ بیٹھے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، جو پرماننٹلی خداوند کے ساتھ تھے، مستقل طور پر نہیں، عارضی طور پر نہیں، بلکہ وہ جو پرماننٹ اس کے ساتھ تھے، مستقل اس کے ساتھ تھے۔ اسی طرح آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس شام کے لیے کہ یہاں پر بھی خداوند کے وہی لوگ موجود ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ ذرا ایک بار یسوع پہ اپنی تعریف کریں۔ ہاللویا۔ آئے ہم سب خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کا ضیاع نہیں کرتے۔ آج ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس شام میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور آخری فصح کھایا۔ اسی تعلق سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی جو ہے وہ 20 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پیسیج تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر ہی مینشن ہے۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات، میں یہ چاہوں گا کہ پہلی 10 آیات جو ہے وہ بھائیوں میں سے جو پڑھے اور باقی جو 10 آیات ہیں پیچھے والی وہ کوئی بہنوں میں سے پڑھے۔ جی تو کریں شروع۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات کی تلاوت کریں گے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا میرا وہ وقت آن پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں ڈال دی اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنا شروع کیا۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں دھونے کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ بہنوں میں سے بڑے بھی گئے وہ اپنے والے وہ نہیں جو
इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और दूत कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने बेचने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक होकर शर्तिया उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये विश्वास हुआ हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात खाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हमें रब के कलाम को पढ़े सुने और समझे जाने में उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जो अभी हमने बहुत सारा ये जो लंबा सा पैसेज पढ़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह खास तौर पर अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब होकर जब ईद फसह है वो आती है, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर कहाँ जाऊं, बाप के पास जाऊं। तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। देखिए यीशु मसीह के बारे में खुदा का कलाम जो है वो यहाँ तक वाज़ेह करता है, यहाँ तक उसकी गवाही देता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ शुरू में बल्कि आखिर तक वैसे ही मोहब्बत रखता रहा। आज यहाँ पर थोड़ी सी कलाम मुकद्दस ने याद दहानी हमें भी यहाँ पर करवाई है कि जब जिस तरह हम पहले जब नए नौमौलूद होते हैं, तो जब हम पहले खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमें बड़ा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है, बड़ा हम शौक रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है साड़ी हवा थोड़ी निकलती जाती है, हम थोड़े पीछे होते जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के इस एक पहलू को और को याद रखें कि सारे यीशु मसीह की बातों को याद रखना है, लेकिन अपनी जिंदगी में खास तौर पर यहाँ पर कि जब आप जैसे जैसे आप ईमानदार मतलब मसीह में ज्यादा देर आपको होती जाए, आपने वैसी ही मोहब्बत रखनी है जैसी शुरू में थी, आखिर तक वैसे ही मोहब्बत रखनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी लिखा है कि जब उनको ये पता भी चल गया कि मैं तो दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, तब भी वैसी ही मोहब्बत रखी जैसी शुरू में रखी थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह यह वो यहूदा अस्करियोती के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि और जब इब्लीस शमऊन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। हालेलुया। यहाँ पर हम यीशु मसीह की आजिज़ी को देखते हैं, यीशु मसीह के उस आजिज़ जो उसका रवैया है उसको देखते हैं। जरा देखें, गौर करें, कितना हम्बल जीसस, कितना आजिज़ यीशु मसीह, जिसने अपने आप को एक खादम के तौर पर पेश कर दिया, उस्ताद होते हुए। जिस तरह आगे हमने पढ़ा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। देखें कि हमारा खुदावंद, मेरा और आपका यीशु मसीह
वो किस कदर दुनिया के उस्तादों से और उस्तादों से दूसरे जो उस्ताद हैं उनसे किस कदर वो मुनफरिद, किस कदर वो अलहदा है, किस कदर वो डिफरेंट, किस कदर वो मुख्तलिफ है कि बाकी उस्ताद ये नहीं है कि उस्ताद का रुतबा भी कम है, उस्ताद बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, लेकिन याद रखें कि वो हमारा उस्ताद जो दुनियावी नहीं है, जो किसी किस्म की उसमें ये दुनियावी लीडर्स वाली दुनियावी उस्तादों वाली बात नहीं है। वो कैसा है? वो आजिज है, वो हम्बल है, वो अपने आप को एक खादम के तौर पर पेश करता है, अपनी टोर नहीं बढ़ाता। याद रखें, मेरा और आपका खुदावन जो उस्ताद, अच्छा उस्ताद, जिस तरह वो उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, वो उस्ताद कोई अपने तौर न बने उस्ताद नहीं, जो खुद साख्ता लीडर है वो नहीं, सिकवा के बेटों की तरह का लीडर नहीं, ना ही बली कोरा की तरह का लीडर, बल्कि वो लीडर, वो उस्ताद जिसके बारे में मेरे और आपके खुदावंद का कलाम ये गवाही देता है कि वो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वो उस्ताद, उसने देखा कि मेरा वक्त आ पहुंचा है और इब्लीस ने यहूदा अस्करियोती के दिल में क्या बात डाल दी है कि चलो भी अपना काम कर। फिर क्या किया? लिखा है कि उसने कपड़े उतारे और रुमाल बांधा और शागिर्दों के पांव धोने लगा। देखें, ये पिक्चर हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो क्या था? हम्बल जीसस, यीशु मसीह की तरफ देखें, वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना वो आजिज है, कितना उसने अपने आप को एक आजिज के तौर पर, एक खादम के तौर पर पेश कर दिया। और आज हम जेडे ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ बड़े नारे लाने हैं, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਆ, मरना तो कबूल है, लेकिन उन्हें गल्लां ते अमल करो। क्या खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसके नाम से मरे? बताएं मुझे, मेरा सवाल है, क्या यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसके नाम से मरे? भाई साहब नहीं, तो ये चाहता है, ये चाहता है कि हम उसके कलाम पर अमल करते हुए हमेशा की जिंदगी हासिल करें, ताकि कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, यीशु मसीह इस कदर कभी आपको नहीं कबूल करेगा कि तुसी उन्हें गल्लां नूं मन्नो ना तो ਉਹਦੇ नाम ਦੇ छोटे मारने के लिए शुरू कर दो, नहीं, बल्कि वो इसी तौर से आपको हकीकी अपना जो है वो शागिर्द बेटा बनाएगा कि जब आप उसके कलाम पर अमल करेंगे। आजिज़ी, यीशु मसीह जैसी आजिज़ी, हम्बलनेस आप अपने अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, कलाम की स्टडी कर रहा था, ये मैसेज रेडी कर रहा था, तो मेरे ज़हन में एक उस्ताद और एक शागिर्द की पिक्चर जब आती है तो मैं एलिया और अलीशा की बात को याद करता हूँ। हम पढ़ते हैं उसके बारे में, दूसरा सलातीन तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत में, निकाले कोई स्पीड से ज़रा, दूसरा सलातीन उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। तो पढ़ने के बाद में आयात थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। दूसरा सलातीन तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत जी। ऐसा करते हैं आपकी खुदावंद के कलाम में कुछ लिखा है, लेकिन यहोशप्पत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई ऐसा नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी को दरियाफ्त करें। और शाह इस्राएल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहाँ है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। आमीन। यहाँ पर एक पिक्चर ये है, यहाँ पर
याद रखिए कि उनको हम लेफ्ट डाउन नहीं कर रहे या हम नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको एक उस्ताद की जो है वो पिक्चर वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक उस्ताद जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह भी हम पढ़ते हैं कि जो एलिया है उसके हाथों पर उसका शागिर्द जो है वो एलीशा पानी डाला करता था। एलीशा अपने उस्ताद के लिए पानी भरता और उसके हाथ पांव धुलवाता था। मगर एक बात जो यीशु मसीह को एक सबसे मुनफरिद, सबसे अलग बनाती है, याद रखें, मेरा आपका खुदावंद आम नहीं है, वो सबसे अलग और सबसे मुनफरिद है। और वो चीज जो उसको मुनफरिद यूनिक बनाती है वो क्या है कि दूसरे उस्ताद हाथ पांव धुलवाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद ऐसा है, वो अपने शागिर्दों के पांव धुलता है। आमीन, हालेलुया, जरा जोर से हालेलुया, हालेलुया, शुक्र है। यहाँ पर जो भी आयत हमने पढ़ी है खुदाम की कलाम में से, तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से अपने खुदावंद यीशु मसीह की एक आजिज़ी को देखें, उसकी हम्बलनेस को देखें, उसका मुआवजा करें हम दूसरे उस्तादों के साथ। जो दूसरे उस्ताद हैं, दूसरे लीडर्स हैं, उनके मुकाबले में हमारा खुदावंद यीशु मसीह जितना तो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा सवाल करते हैं कि यीशु मसीह को ही आना क्यों लाज़मी था, क्यों यीशु मसीह को निजात दहिंदा कहना जरूरी है, क्या यीशु मसीह में इतना दूसरों से लहदा है, दूसरों से बढ़कर है कि उसे फकत एक नबी या एक कोई आम शख्स नहीं या कोई दूसरे नबियों की तरह दूसरे रूटीन की तरह पैगंबर नहीं, बल्कि उसे क्यों एक नबी से बढ़कर एक खुदा अपना मालिक कहा जाता है। तो यही बातें हैं, यही बातें यीशु मसीह को सारे उस्तादों से, सारे नबियों से, सारे पैगंबरों से मुनफरिद, अलहदा और बढ़कर बनाती हैं कि मेरा और आपका खुदावंद हुकूमत चलाने वालों में से नहीं, उसने हमें हुकूमत चलाना नहीं सिखाया, उसने हमें मार कूट लड़ाइयाँ नहीं सिखाई, बल्कि उसने हमें आजिज़ी, मोहब्बत और प्यार सिखाया है। और यही बात है कि जो मुझे और आपको इस बात को कहने को मजबूर करती है कि हाँ, मेरा खुदावंद सबसे अलहदा, मेरा ही खुदावंद सबसे मुनफरिद और मेरा ही खुदावंद सबसे आला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक और स्टडी थोड़ी सी बाइबल की करें। मत्ती की इंजील में हम देखते हैं, मैं जरा थोड़ा स्पीडली कहूँगा, ये ना हो तो टाइम भी ज़्यादा हो जाए। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब, और जब हम उसकी जो है वो पहली 12 आयत का मुताला करते हैं, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर आप सिर्फ देख ले, लेकिन आपने पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब, उसकी पहली जो 12 आयत है, जब हम उनका मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु शरअ के आलम और फरीसियों के खिलाफ का मतलब ये है कि जो इख्तिलाफ, जो डिफरेंस यीशु मसीह में और उन शरअ के आलमों में था, फकीह और फरीसियों में था, तो क्या उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके जो है वो खिलाफ, ये यीशु मसीह ऊपर थोड़ा सा किस तरह उन्होंने हुलांदे हैं। तो यीशु मसीह उनके बारे में ये कहते हैं, हम साथ में आज पढ़ेंगे कि और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। देखें, और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हाथी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हाथी एक है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। तीसरी आयत पढ़ेंगे, लिखा है कि बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। ये मेरा पॉइंट था कि जो शरअ के आलम है,
अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि वो सलाम करवाना लोगों से पसंद करते हैं, वो खुश होते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि सलाम है जी भाई जी, सलाम है। अगर आप खामोश होकर गुजर जाए या वैसे गुजर जाए, जो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको वादे किया है कि वो शाखें खुलवाते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को बड़ा दिखवाना चाहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर लोग उनको देखें, जाने कि नहीं भाई है तो बड़ी शय लगती है। जरा थोड़ा सा गौर कर लें खुदा के कलाम पर। ये वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर भी कर लो गौर, कोई गल नहीं। तो यहाँ पर हमने भी पढ़ा है शरह के आलमों का और फकीह फरीसियों का कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो रब्बी कहलाना पसंद करते हैं और सलाम करवाना भी पसंद करते हैं। लेकिन तीसरी आयत में जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहते हैं वो जो कुछ कहते हैं करो मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई खुदा के कलाम की आयत आपको सुनाता है या कोई मठा जहा बंदा बेचारा वो खुदा का कलाम लेके आंदा तो खुदा के कलाम में से आयत आपको बताता है तो उस कलाम पर अमल कर लेना है। लेकिन उस शख्स के से काम, उस शख्स का थोड़ा सा ईमान नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। वो सिर्फ वो बातें, वो कलाम भावियों ने अगले वो दसन नहीं लाया होगा, आप ना भी करता होगा, लेकिन वो कलाम पर आपने अमल कर लेना है, लेकिन उस शख्स के से काम नहीं करने। देखें यीशु मसीह हर तरह से हमारा उस्ताद है। एक वो हमें आजी सिखा रहा है, हलीमी सिखा रहा है, और दूसरी तरफ वो हमें ऐसे लोगों से भी आगाह कर रहा है, हमारी तंबीह कर रहा है कि आप उसके कलाम को तो ठीक है सुन ले आप, लेकिन उनके से काम ना करें। किन के से काम? जो अपने आप को अपने तौर पर उस्ताद कहते हैं, जो बिल्कुल काम उनके नाकस हैं, लेकिन खुदा का कलाम चुप के कहते नहीं जी मेरे तो वड्डा दे मैं जमने नहीं देता। ऐसे लोगों के से काम आपने नहीं करने। देखें यीशु मसीह हर तरह से, हर पहलू से हमें जो है वो काट छांट रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, देखिए कितना बड़ा यीशु मसीह ने हमें फार्मूला बना दिया कि जे तुसी बड़ा बनने की ख्वाहिश करते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे बड़ा कहा जाए तो उसके लिए क्या करना है? ये अपनी टोर बनानी है। अगर आप ये कहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे कहें, सिर्फ ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर उन लोगों की तरह, बल्कि हकीकी तौर पर जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए, जब यीशु मसीह का कलाम आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप ये चाहें कि हाँ जी मेरी इज्जत हो, तो उसके लिए क्या यीशु मसीह ने हमें फार्मूला दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बड़ा कहे या, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो भी अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये है बड़ा बनने का फार्मूला। छोटे बन जाए तो आप बड़े बन जाए खुदा की नजर में। इंसानों की नज़र में बड़े नहीं, इंसानों की नज़र में नहीं कहना मैनू भाजी क्या तो आप बोलना नहीं, अच्छी बात है उम्मीद, लेकिन यहाँ पर एक और पहलू छेड़ा होगा कि इंसानों की नज़र में, या आप ये कहें कि जी हूँ तो मैं कलाम पढ़ना तो होड़ मेरे ना कोई बदतमीजी ना करे, नहीं, बल्कि आप छोटे बन जाएं, आजिज बन जाएं, हलीम बन जाएं, तो तब भी आप बड़े किए जाएंगे। याद रखें जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि वो लोग जो सिर्फ कहते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, अभी वो भी मेरे हिसाब से लोगों को कहते होंगे कि आजिज हो जाएं, हलीम हो जाएं, लेकिन लोग क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो खुद नहीं होते थे। वो खुद अपने जो है वो अमली तौर पर वो साबित नहीं कर सकते थे कि इस तरह से हो जाना है। अभी मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि अगर एक बंदा कोई बुरा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, बदतमीजी कह ले कि अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो किसी दूसरे को कहे भी भाई तू ना बदतमीजी कर, तो वो उसे क्या कहेगा कि जा पहले अपना आप तो सही कर, अपने आप को तो सही करो फिर मुझे कहना। सेम यही
रवैया, सेम यही काम, सब कुछ यही उन लोगों में था। वो लोगों को कहने में तो बड़े दलेर थे, बड़े शेर थे, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आती थी, जब वो खुद उनकी बारी आती थी, तो तब वो अमल से खाली होते थे। इसी वजह से उनकी खिदमत फ्रूटफुल नहीं थी, फलदार नहीं थी। इसी वजह से उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो यीशु मसीह जिसने अपने आप को छोटा किया, जिसने अपने आप को आजिज बनाया, देखें कि आज सारी दुनिया उसे अपना खुदावंद कहती है, सारी दुनिया उसे अपना मालिक कहती है, सारी दुनिया उसका ये इकरार करती है कि हाँ, वो ही मेरा खुदावंद, वो ही मेरा निजात दहिंदा है। आमीन। ये फार्मूला है कि अगर आप अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं तो आप आजिज बन जाएं, आप छोटे हो जाएं, तो आपको लोग याद करेंगे। जिस तरह आज यीशु मसीह को लोग अपना मालिक कहते हैं, खुदावंद कहते हैं। किसी ने तो ये भी लिखा था कि जीसस इज माय एवरीथिंग। देखें, एवरीथिंग, हर चीज के अंदर मेरा यीशु ही है। तो किस तरह से? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, आजिज किया। यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं किया। किसको नहीं पता था उसके शागिर्दों में जब उन पर जाहिर होता है कि ये खुदावंद है, तो क्या यीशु मसीह ने लाते लातरा के क्या भी जा में नहीं पानी ले गया? इस फसा की शाम में क्या यीशु मसीह ने धमका ला गया, होए इधर आ, जा पानी ले गया? क्या यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें की? नहीं, बल्कि लिखा है कि जब उसको पता चल गया तो उसने फटका बांधा और पाँव धोने लगा। ये फार्मूला है कि आज यीशु मसीह को हम अपना निजात दहिंदा मानते हैं। तो यीशु मसीह खुद, थोड़ा सा इनका भी हम मुआवजा करेंगे। ये जो फकीर फरीसी है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन हमारा खुदावंद ऐसा है कि पहले वो काम करता है तो फिर वो कहता है, पहले वो खुद उस पर अमल करता है। पहले उसने खुद हमें अपनी जो है वो एक जिंदगी इसलिए उसने दी है, अपने इंसान बनने की खुदा को जरूरत यही थी कि लोग सीखें कि अगर कोई इंसान बनकर गए तो इस तरह से जिंदगी बसर करे। वो ऐसे नहीं उसको आना पड़ा, बल्कि यीशु मसीह उनकी तरह नहीं थे जो सिर्फ कहते थे और वो अपने काम नहीं करते थे जो कहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदावंद ऐसा है कि जो वो कहता है उस पर पहले खुद अमल करता है, फिर वो दूसरे को कहता है, ताकि कोई होते इल्जाम ना लाना ना बने, खुदावंद खुद तो तुमने वो काम किया नहीं तो मुझे कह रहे, जिस तरह लोग उनको कहते होंगे। इसलिए मेरा और आपका खुदावंद सबसे ज्यादा है। आइए जरा हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने हलीम होने का इकरार करता है। पहले यीशु मसीह कहते हैं ना, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 29वीं में लिखा है कि मेरा जवाब अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी। देखें, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना हलीम होने का इकरार किया है कि हाँ जी मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। लेकिन वो बात सिर्फ यीशु मसीह ने हवा में नहीं कह दी, या वो बात सिर्फ ऐसे नहीं कह दी कि बस मैं कहता सी नहीं, बल्कि जब वक्त आया तो उसको साबित भी किया, उसका सबूत दिया, अपनी अमली जिंदगी में उन चीजों को करके दिखाया कि लोग हकीकी तौर पर ये जान सके कि अगर यीशु मसीह ने ये कहा था कि वो हलीम है और दिल का फरोतन है, तो नहीं कि उसने यूहन्ना के इंजील में ये साबित भी कर दिया कि वो हकीकी तौर पर आजिज है, हकीकी तौर पर हलीम है, और उसने अपने हिल्म होने का, अपने हलीम होने का कैसा नमूना दिया कि उसने अपने ही शागिर्दों के पांव धोए। ये है मेरा और आपका खुदावंद, जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि इम्प्लीमेंट करता है, अपना अमल करके उस बात पर दिखाता है और फिर हमें कहता है कि जब मैं की तस्वीर हमें अगर उसको खुदावंद कहना है तो फिर आप पर भी ये फर्ज है कि आप भी उसी तरह वो काम करें, वही आजिज़ी, वही सारी अपने अंदर लेकर आए जो यीशु मसीह ने खुद अपने अंदर लेकर आए थे। तो इसी तरह हम कलाम के कलाम में आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों के खत में भी हम देखते हैं कि
हम देखते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह जो है, अगर वो अपने आप को आजिज कहते हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है, तो यीशु मसीह के गवाह भी हैं जिन्होंने ये हकीकी तौर पर जाना है कि हकीकी तौर पर यीशु मसीह जो है वो आजिज है। तो मैं ये समझता हूँ कि पौलुस रसूल जो है वो यीशु मसीह का सबसे बड़ा गवाह है। यीशु मसीह हकीकी तौर पर आजिज थे, हकीकी तौर पर वो हम्बल थे। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत से 9 आयत तक देखें। पढ़े जी कोई। उसने अगर चाह खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत के वाले। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सम्मान किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को कि पौलुस रसूल यहाँ पर यीशु मसीह की जो हलीमी है और उसकी अजमत जो है उसका गवाह है। और क्या कहता है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या किया, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। अगरचे हम पढ़ते हैं कि वो खुदा के बराबर, लेकिन उसने उस चीज को कब्जे में रखना ना जाना, बल्कि क्या किया, क्या हो गया जी, खाली, अपने आप को खाली कर दिया। और किसकी सूरत इख्तियार की, बोले सारे, किसकी सूरत, खादिम की सूरत इख्तियार की। यीशु मसीह अगर उन्होंने कहा था ना कि मैं हलीम हूं, उन्होंने इन बातों में साबित भी किया है। ये है अमली जिंदगी खुदा यीशु मसीह की। वो फकीर फरीसियों का जो है वो पैसेज पढ़ने का, आपको बताने का यही मकसद था कि वो देखें यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो जो काम कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारा खुदावंद ऐसा खुदावंद है कि जो कहता है वो करता भी है। अमली तौर पर उसने साबित किया और लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। ये है यीशु मसीह की आजिज़ी। उसने अपने आप को खाली कर दिया और तिड़िया नहीं साडेंगू। जिस तरह हम आज अपने आप को आजिज करना या किसी के सामने सॉरी कहने, मैं समझता हूँ कि छोटा सा लफ्ज है कि सॉरी कहना ही हम समझ लेते हैं कि जी साड़ी ईगो का मसला। अगर किसी से कोई माजरत माफी करनी पड़ जाए, वो हाँ भाई मैं है, क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद तो कहते हैं, लेकिन उसकी बातों पर अमल नहीं करते। अफसोस उन लोगों पर अफसोस है जो ऐसा करते हैं, सारे तो नहीं, उन पर जो ऐसा करते हैं। इसलिए यीशु मसीह की इस तस्वीर को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, इस खिदमत गुजारी को, इस आजिज़ी को, कि यीशु मसीह ने बच्चे जो खुदा के बराबर है, लेकिन उसने उस चीज को अपने कब्जे में रखना ना समझा, बल्कि उसने ये जाना कि मुझे छोटा होना है, मुझे खाली होना है, तब मैं जाकर उस उम्मत को, उन लोगों को जो मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनको बड़ा बनना ना सिखाऊं, बल्कि मैं उनको आजिज बनना सिखाऊं, ताकि वो जिस्मानी तौर पर तो आजिज होंगे, लेकिन याद रखें खुदा की नजर में हम बड़े होंगे। लेकिन उसका फार्मूला यही है कि आप अपने आप को आजिज करें, छोटा करें।
सॉरी कहने नाल कुछ नहीं हो जाना, माफी मांगने नाल कुछ नहीं हो जाना, किसी के सामने खामोश रह लेने से कुछ नहीं होगा। फकत यीशु मसीह की आज़ी को याद रखना है। आज का जो हासिल कलाम है, जिसे हम कहते हैं कि कलाम का निचोड़, जब हम वो मैट्रिक में पढ़ते हैं या 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं तो समरी होती है, एंड में खुलासा उसे कहते हैं। तो वो खुलासा आज के इस मैसेज जो है वो तकमील को पहुंचा है। कलाम की शुक्रगुजारी है। तो हासिल कलाम हम सब के लिए ये है कि हमेशा यीशु मसीह की इस तस्वीर को, जो आजली वाली तस्वीर है, आजली का पहलू है, इसको अपने जहन में रखना है कि अगरचे वो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, वो खुदा के बराबर है, लेकिन उसने फिर भी किस चीज को सामने रखा? अपने आप को खाली करना उसने सामने रखा, अपने आप को आजिज करना उसने सामने रखा। हमारी तरह नहीं, क्योंकि मैंने एक सुनावे थे मैं उनको 4 सुनाना, ये हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जे कोई मैंने एक सुनावे तो मैं 4 सुनाना हूँ, इतना मैं शहार, इतना मैं तेज। लेकिन खुदा की नज़र में वो बंदा, मैं समझती जो 4 सुनाने वाला है वो इतना सा। लेकिन वो शख्स जो अगले के लिए बरकत चाहता है, जो अगले को कहते हैं कि भाई जा माफ कर, तेरा भला हो। तो जिस तरह भाई साहब कहते हैं कि जो गुस्सा आवे तो गुस्से जी कह देना हाँ भाई खुदा ते रहम करे। तो ऐसी बातें कहने वाला इंसान के अंदर तो बेशक वो बुज़दिल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना वो तो कुछ क्या है तो डर गया बुज़दिल। इंसान की नज़र में बेशक वो बुज़दिल हो, लेकिन खुदा की नज़र में वो बड़ा किया जाए। आमीन। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं मानता हूँ कि आज के कलाम पर से सब बहन भाइयों ने बरकत पाई है। आए बरकत का इजहार तालीम के साथ जोरदार कभी